So today I will talk about matrix inversion method. So ये जो टॉपिक है ये आ रहा है साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स. सो पहली आती है चीज़ दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए matrix. So transpose क्या होता है? Suppose we are having a matrix A and whose elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33. So if we try to write down its transpose, then what does that mean? That is represented either by A prime or AT. So ये आएगा means रोज और कॉलम्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं. सो दैट मीन्स ये फर्स्ट रो है. लेट मी राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ ए फर्स्ट कॉलम. सो व्हाट इट विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड थर्ड जो है इसको मैं थर्ड कॉलम की तरह थर्ड रो को लिखूंगा A31, A32, A33. तो ये मेरे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए matrix. Means what we did, we have interchanged rows and columns. Means it is simply the interchange of rows and columns. Clear? And then another very important thing, that is the inverse of a matrix. Inverse of a matrix. So if we are having a matrix A and this matrix is non-singular, right? And what is the meaning of non-singular? Means the determinant of A must be equal to 0. Non-singular means determinant क्या होना चाहिए? Not equal to 0. It must be non-zero. ये आता है, right? And suppose there is another matrix and that matrix is, let us call as B, such that when A or B gets multiplied with A, we are getting a identity matrix. Then this B is called what? B is called inverse of A. That means A inverse is equal to I, or in other words I can call it as A inverse A is, right? So ये मेरे पास इस तरह से डेफिनेशन आती है. सो जहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कोफैक्टर की बात करते हैं. एंड आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट इट इन द अर्लियर लेक्चर्स, राइट? सो यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कोफैक्टर एंड माइनर. और आई क्या है? I is the identity matrix of the same order. अब A inverse को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मुझे A inverse कैलकुलेट करना हो, so it is basically A inverse is equal to 1 over A and transpose of cofactor matrix. So it is A11, A21, A n1, अगर ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड इट इज A12, A22 एंड सो ऑन, A n2 एंड सो ऑन. इट इज A1n, A2n एंड सो ऑन, Ann. ये क्या है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ये क्या है? इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. मीन्स A11 क्या है? इट इज द कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा. इसी तरह से सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है ये. इसी तरह A21 मीन्स जो ये सेकेंड एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये
कोफैक्टर आ रहा है, राइट। सो इस तरह से हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इसका हम यूज़ करते हैं जब हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का यूज़ करेंगे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। So let us define n linear equations, ठीक है। n linear equations है, so that means a11 x1 a12 x2 plus and so on a1n xn is equal to b1. This is first equation. And similarly, let me write down the second equation, that a21 x1 a22 x2 and so on a2 and xn is equal to b2 and so on, and it is an1 x1 an2 x2 and so on ann xn is equal to bn. ये मेरे पास क्या है, n simultaneous equations है और n इसमें वेरिएबल्स है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट ऑल x1 x2 एंड xn। सो क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, x1 कैलकुलेट करना है, x2 कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन x3 कैलकुलेट करना है, एंड सो ऑन अप टू xn. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. So let me write down it in the form of a matrix, right? This can be written in the form of a matrix. So it can be written as a11 a12 and so on a1n a21 a22 a2n and so on an1 an2 ann. This matrix multiplied with x1 x2 and so on xn, and it is equal to b1 b2 and so on bn. So let us call this as A matrix, and this we call it as X matrix, and this is equal to B. So if I operate both sides with A inverse, अगर मैं A inverse से ऑपरेट करूं, then it is A inverse X is equal to A inverse AX is equal to A inverse B. So ये क्या बन जाएगा, A inverse A is I, so IX is equal to A inverse B, right? So that means I can simply write down it as X is equal to A inverse B. So that means if I am able to find out the inverse of matrix, और matrix कौन सा है, it's a coefficient matrix, because a1 a12 a1n ये क्या है, these all are the coefficients. So coefficients का अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करूं एंड मल्टीप्लाइड विद जिसके साथ मैंने इक्वेट किया हुआ है, देन आई कैन कैलकुलेट दिस. और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये भी मुझे क्या देगा, इनका प्रोडक्ट भी मुझे क्या देगा, इट्स अगेन ए कॉलम मैट्रिक्स. सो दैट मीन्स वन कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम अनदर कॉलम मैट्रिक्स. तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू को बता देता है, राइट? सो दिस इज इट. सो दैट मीन्स ए इनवर्स अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट और लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन. सो consider equations that 3x plus y plus 2z is equal to 3, 2x minus 3y minus z is equal to minus 3, and x plus 2y plus z is equal to 4. So a क्या आ जाएगा, a is basically coefficient matrix 3 1 2 2 minus 3 minus 1 and then 1 2 1. so ये आया, ये मैट्रिक्स आ रहा था. सो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स. इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स? इनवर्स का मीन्स हमें क्या क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? 3 2 1 1 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 8 इफ यू सॉल्व इट। ये कर लोगे? ओके। देन 3 का क्या चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसको एलिमिनेट करके, सो लेट अस कॉल दिस एज A11 मीन्स -3 2 -1 1। ये आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट इज 1 -1। देन A12, ये और ये कौन सी पोजीशन है? ऑड पोजीशन है, सो इट इज माइनस आ जाएगा इसमें, एंड इट इज -2, इट इज सॉरी -2 1 -1 1 ऐसे आएगा, एंड इट इज इक्वल टू -3, राइट। इट इज -3 क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन डिफरेंस लेते हैं, राइट। इसी तरह से A13 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7, A22 की वैल्यू आ जाती है, A21 की वैल्यू आ जाएगी, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू आ रही है इट इज़ 1, एंड देन A23 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5, देन A31 इज इक्वल टू 5, A32 की वैल्यू 7, एंड देन A33 की वैल्यू -11। सो व्हाट वी डिड, अब इनका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये 3 एलिमेंट मुझे डाउनवर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो A इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास? ट्रांसपोज इनका, तो ये क्या आ जाएगा? -1 -3 और ये 7, एंड देन 3 1 5 -5, ओके। देन इट इज 5 7 -11, ये आ गया मेरे पास, राइट। एंड देन व्हाट डू वी डू? अब एक तो तरीका क्या है कि आप 1/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, बट वो टिपिकल हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, लास्ट में इकट्ठा करके कंपाइल करते हैं। तो x क्या आया था मेरे पास? A इनवर्स B, सो इट इज 1/8 -1 -3 7 3 1 -5 5 7 -11 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सॉरी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कांस्टेंट आता था, सो इट इज 3 -3 एंड 4। अब चेक करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इट इज 3/3 and 3/1, right? So number of columns in first must be equal to number of rows in second. ये order match कर रहा है, so that means matrix multiplication possible है, इनको multiply कर लो। So when we multiply these, ये क्या आ जाएगा? 1/8 as it is 8 16 -8, ये आता है after doing some multiplication। ये कर लोगे? ओके। सो अब 1/8 से ये कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज इट इज 1 इट इज 2 इट इज -1। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? क्या था हमारे पास? इट इज x1, सॉरी इट इज xyz, xyz, और ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल। सो इट इज 1 2 -1, so that means x is what? 1, y is 2 and z is -1। so is it clear? so ये जो मेथड था इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यूज। बट 3/3 ऑर्डर है, हम आराम से कर सकते हैं, बट when we switch from 3/3 order to 4/4 order, 5/5 order and higher orders पे जब हम switch करने की कोशिश करते हैं, then it will take a longer time, ज़्यादा टाइम लगेगा।
सो हमें क्या करना है, वी हैव टू डेवलप द मेथड सो दैट हम हायर ऑर्डर की इक्वेशंस को भी, लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकें. सो उसके लिए हमें न्यू मेथड्स को डेवलप करना पड़ेगा. और उसमें से नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. सो आई विल टॉक अबाउट दैट लेक्चर इन द नेक्स्ट टाइम, राइट.